Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS to this series 1 PYQ a day for those of you who are writing this year's mains and those of you also who are preparing for next year mains. And today is the day of disaster management, and that is why I am here and we are going to discuss a previous year question which has appeared in mains UPSC exam. Let's jump into our question, which has been asked in year 2023, a 15 marker to be answered in 250 words. Let's just read the question. The question is that the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, has predicted a global sea level rise of about 1 meter by year 2100. What would be its impact in India and other countries in the Indian Ocean region? So, first of all, you have to understand the demand of the question. Your answer will closely follow what has been asked in the question. Your answer should be imaginative, it should be innovative, properly structured, organized, laden with contemporary examples, multidimensional, and within the world limit. World limit को breach नहीं करना है, otherwise there will be a penalty. तो आईपीसीसी जो कि एक साइंटिफिक बॉडी है यूएन के लेवल पे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी के लिए बाद में आईपीसीसी बनाया गया था टू प्रिसाइसली प्रोवाइड द साइंटिफिक इनपुट टू द वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। उनकी ये रिपोर्ट के बारे में ये एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। दे हैव मेंशन्ड इट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है कि 1 मीटर तक सी लेवल राइज हो सकता है। The question starts from the second part. What would be its impact on India and other countries in the Indian Ocean region? This is the question that they are asking. ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ दिया है कंटेक्स्ट सेट करने के लिए. You don't have to describe IPCC, you don't have to talk about the reports in detail. तो शुरुआत हम करेंगे अपने इंट्रोडक्शन से, which is the toughest for many of the aspirants to write. Introduction is the face of your answer. कैसे start करोगे इसको? You can simply talk about the report. The IPCC report is talking about 1 meter rise, which will have multifaceted challenges to the countries of the Indian Ocean region because of climate change, because of human-induced climate change, and because of what we are doing in the coastal areas, because we are going for unsustainable development in those areas, we are going for irregular construction of buildings and assets, and because of our lack of proper planning in this domain, we are looking into serious challenges by the end of this century. इसको शॉर्ट फॉर्मेट में, जो मैंने आपको बोला, 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, जो कॉन्टेक्स्ट है अपने आंसर का उसको सेट कर देना। जनरली यू स्टार्ट विद ए स्टेटमेंट आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जो उन्होंने डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, या फिर जो मैंने आपसे कहा उसको भी आप लिख सकते हो प्रॉपर, विच विल सेट द टोन. इंट्रोडक्शन इज व्हाट? सेटिंग द टोन ऑफ योर आंसर. तो सेट द टोन ऑफ योर आंसर by mentioning these things, that how important this challenge is going to be in this century. अब आओगे अपने ऑपरेटिव पार्ट पे, जो मेन आंसरिंग होगी. ऑपरेटिव वर्ड क्या है यहाँ पे? व्हाट, क्या पूछ रहे हैं वो. व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट इन इंडिया. तो स्टार्ट विथ इंपैक्ट इन इंडिया. क्या इंपैक्ट होगा? सी लेवल राइज हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? सबसे पहला इंपैक्ट होगा कि जैसे ही सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़े बड़े सिटीज इंडिया की डेवलप्ड हो रखी हैं जिनकी इकोनॉमिक आउटपुट काफी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ, हाईवे से लेके जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और भी तरह तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, उसको नुकसान होगा. तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इंपैक्टेड. फर्स्ट थिंग विल बी दिस. जैसे ही सी लेवल राइज होता है, बहुत सारी जो रोड्स हैं, जो एरियाज हैं जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं वो सबमर्ज्ड हो जाएंगी पानी के अंदर. 1 मीटर क्योंकि बहुत होता है. कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ दूसरा आप बात करोगे किसकी? You will talk about, first of all, coastal infrastructure, and then you will talk about the communities who are living in these areas. कम्युनिटीज के बारे में बात करोगे.
There are millions of people who inhabited these low-lying coastal areas. इंडिया में जो ईस्टर्न कोस्ट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है, बोथ प्लस हमारी जो आइलैंड टेरिटरीज है, तो कोस्टल कम्युनिटीज के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. दे विल हैव टू रीलोकेट. तो यहां से माइग्रेशन होगा लोगों का. There will be migration. There will be direct and indirect variety of impacts on this population which is living there, which is earning their bread from those areas. बहुत सारे हमारे फिशरमैन हैं जो कि फिशिंग के लिए जाते हैं समुद्र में. Lot many families who are by the way are living very close to poverty line, they will have issues. तो उनकी जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है, इकोनॉमिक्स पे भी असर पड़ेगा. कम्युनिटीज के ऊपर प्राइमरली उनकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा. That's how these issues are interlinked. तो माइग्रेशन, इकोनॉमीज, फूड सिक्योरिटी, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली रिलेटेड टू कम्युनिटीज. देन जो मैरिटाइम डाइवर्सिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, चाहे वो मैनग्रोव्स हो, चाहे वो कोरल रीफ्स हो. दे विल ऑल्सो विल बी इंपैक्टेड. इनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा. रिमेंबर ये राइज क्यों हो रहा है? जो सी लेवल राइज है वो हो रहा है बिकॉज क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज हो रहा है. उसकी वजह से हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आवर ओशन, क्योंकि मैक्सिमम जो हीट एटमॉस्फेयर में है इट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय व्हाट, whom? इट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय आवर ओशंस. तो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. देयर आर मरीन हीट वेव्स, देयर आर वैरायटी ऑफ ग्लेशियर्स व्हिच आर मेल्टिंग. आइस शीट्स जो हैं वो कोलैप्स हो रही हैं अंटार्कटिका के अंदर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. वी आर लुकिंग इनटू इट एंड सो मच एंड सो दैट आर्कटिक इकोसिस्टम इज डिक्लाइनिंग रैपिडली. न्यू रूट्स आर बीइंग फॉर्म्ड देयर बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइन. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज यहां भी इंडिया को भी देखने को मिलेंगे. हमारे जो मरीन सिस्टम्स हैं, चाहे वो मैनग्रोव्स हो अक्रॉस द कोस्ट इंडिया के मिलते हैं ये, और कोरल रीफ्स हो, उनको भी डैमेज होगा. Then there will be impact on government resources as well, because government will have to relocate a lot of resources for what? For protecting these communities, relocating these communities, creating a new infrastructure. ये सब कुछ लगेगा. गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा असर इसके कारण पड़ेगा. And that will be a very very serious crisis for, because many high GDP generating areas are located to our coast. वो एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट निकल के आएगा. तो इंडिया के ऊपर इस तरह के इंपैक्ट होंगे. एंड देन देयर कैन बी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो. व्हेन पीपल विल मूव टू इंटरलैंड्स इट कैन क्रिएट इश्यूज. तो सोसाइटल जो कोहेजन है इंडिया का, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है. तो इन तरीके से चैलेंजेस हमारे सामने निकल के आएंगे. प्लस जो सलाइन वाटर है इसका जब इनग्रेस होगा तो एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा. जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो अंडरमाइन होंगे. जब मिक्सिंग होगी सलाइन वाटर की तो इट विल अंडरमाइन अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर भी इसका असर होगा. तो वाटर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा. सो दीज विल बी द इम्पैक्ट्स इन ए वे मल्टी डायमेंशनल में. हमने इनको सबको कवर यहां पे कर दिया ब्यूटिफुली इन ए स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे. This is how you will write about the impact in India. You discussed economics, you discussed food security, water security, infrastructure, government, societal cohesion, maritime biodiversity, सब कुछ डिस्कस कर लिया जो डिस्कस करने यहाँ पे योग्य बात थी. आधा आंसर यहाँ पे हो गया. ये जो मेंशन करना है इसको इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग कि क्यों हो रहा है ये जो सी लेवल राइज है, इसके कारण क्या है, या फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे. विच एवर वे वर्क्स, इट इज फाइन. शुरुआत कर सकते हो कि क्यों हो रहा है, हालांकि वो पूछ नहीं रहे कि क्यों हो रहा है, इसीलिए जब अपना आंसर लिखोगे उसमें इसको इंटीग्रेट कर देना. तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी. एग्जामिनर विल नो दैट यू नो थिंग्स एंड यू आर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हम आते हैं द इंपैक्ट इन ऑन अदर कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन. अदर कंट्रीज कौन सी हैं? अदर कंट्रीज इन IOR कौन सी कंट्रीज है? बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, राइट. मालदीव्स फॉर एग्जांपल, जो सिर्फ 1 मीटर ऊपर है ओशन से, इसीलिए उनका टूरिज्म इतना सक्सेसफुल है.
अगर 1 मीटर राइज हो जाता है, दे विल बी सबमर्ज्ड फुली, मोर देन 10 लाख पीपल, वेयर दे विल गो? तो लो लाइंग जो एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, मालदीव्स है, सुंदरबंस ऑफ areas or low lying areas of Sundarbans which are in both in India, but here we will talk about Bangladesh. बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा लो लाइंग एरिया है, बे ऑफ बंगाल में। इट विल बी सबमर्ज्ड। इंपैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो इंडिया पे हो रहा है, इनके ऊपर भी होगा, लेकिन यहां पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशनैलिटी जैसे मालदीव के साथ है, और कंट्रीज सारी कवर करना है इसमें, इंडियन ओशन रीजन की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे केन्या हो गई जो ईस्टर्न कोस्ट अफ्रीका है, वहां पे जो कंट्रीज लोकेटेड हैं क्लोज टू इंडियन ओशन, मॉरिशस है, सेशल्स है, ये जो कंट्रीज हैं इनका भी जब यहां मेंशन करोगे तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आपसे ज्योग्राफी भी पूछी जा रही है एक तरीके से। तो मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, अपार्ट फ्रॉम इट सेशल्स, मॉरिशस, ये सब इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं, मडगास्कर और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहां पे जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, लो लाइंग एरियाज विल बी सबमर्ज्ड, देयर विल बी इश्यूज ऑफ वाटर सिक्योरिटी, जो हमने मेंशन की, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, यहां पे भी इश्यूज होंगे, और इसका इंपैक्ट जियो पॉलिटिकल भी हो सकता है। कैसे? बिकॉज डिमांड फॉर जस्टिस विल इंक्रीज, डिमांड फॉर जस्टिस विल इंक्रीज, क्लाइमेट जस्टिस, कि वी आर being submerged because of the developed world's growth and economic development in the previous century and this century. This will be the issue. Refugees will be created, climate refugees इनको कहा जाएगा। वैसे भी इतना एंटी माइग्रेशन इस समय सेंटीमेंट है दुनिया भर में, तो दैट विल आल्सो क्रिएट इश्यूज। प्लस मेनी ऑफ द कंट्रीज व्हेन देयर एरियाज विल बी सबमर्ज्ड, तो जो यूनिक्लोज का एप्लीकेशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज, जो कि बात करता है किसकी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, ईईजेड की, जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, योर लैंड अराउंड योर सोवरेन टेरिटरी, 200 नॉटिकल माइल्स सराउंडिंग इट विल बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर मालदीव सबमर्ज हो जाता है तो उनका इकोनॉमिक जोन कहां जाएगा, that will also submerge, and then the competition for the maritime resources will increase between the great powers. ये चैलेंजेस होंगे इनके, जो फार्मर्स वहां रह रहे हैं, जो फिशरमैन है, उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी पे होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर व्हाट, डेवलपिंग कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम इज लो, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लो, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा टू सपोर्ट दिस पॉपुलेशन। तो इस तरीके से इन कंट्रीज के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। सवाल जो था वो ये था कि व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। यू कैन सिंपली टॉक अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन वन बॉडी एंड you can separately address them as well. My suggestion would be to separately address them. हालांकि ये जो reasons हैं इसको integrate कर देना है। As long as the cat is catching the mouse, the color of the cat is not important. In whichever way, if you are addressing the demand, the core demand of the question, you are fetching marks, everything is fine. हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल होती है, लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो कोर बात है कि आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इनोवेटिव, creative, contemporary examples should cover all the important dimensions which has been asked in the question. उसके बाद लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन इज नॉट योर समरी, तो कंक्लूजन में लिखना शुरू करोगे, फ्यूचर ओरिएंटेशन थोड़ा होना चाहिए। यू कैन टॉक अबाउट हियर कि मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोलोबोरेशन, ये सारी जो चीजें हैं, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर एग्जांपल, और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के जो गोल्स हैं हमारे, उन सबको अचीव करना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये नेशनल लेवल पे महसूस की जाएगी, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो इंटरनेशनल है, क्योंकि मालदीव्स या इंडिया या बांग्लादेश अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो। दैट नीड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एफर्ट। दिस इज व्हाट यू विल टॉक अबाउट इन कंक्लूजन। यू विल प्रोवाइड इन ए वे सम सजेशंस कि क्या हमें करना चाहिए टू मिटिगेट दिस, and then the answer will be fully completed. You have addressed all the demands of the question. Many of the aspirants, they do the mistake that they try to write too much. Don't write too much. उन्होंने पहले पेज में ही ये लिखा हुआ है
कि the content of the answer is more important than the length. Just mention briefly all the important points within 250 words, finish the answer, you will get the marks. And if you write excessively, you try to push many things, यहाँ आईपीसीसी के बारे में बात कर रहे हो, इसको और खींच रहे हो और लंबा कर रहे हो आंसर को, मार्क्स नहीं आएंगे, पेनाल्टी लग जाएगी वो अलग से. तो दिस इज हाउ यू राइट. देयर नथिंग टेक्निकल इन दिस आंसर, इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, एक इंटीग्रेटेड वे में सोचना है, बढ़िया तरीके से लिख देना. सो दैट वाज the previous year question of disaster management. So those of you who are appearing this year mains, keep writing, keep practicing. The more you sweat in practice, the more you will less you will bleed in the war. And this is also almost equivalent to war. The more you will practice now, the better will be the chances of success in final जो लिस्ट निकल के आएगी. फिर मिलेंगे.